Hello everyone. Welcome back to my channel and I hope you all are doing well and you are preparing pretty well for your upcoming examination, be it a recruitment examination or any eligibility based examination. So this video is not for the scientist B examination. It is other than scientist B, it is a scientist C examination related video. So I am constantly posting content related to scientist B examination, which is going to be conducted by AIMS. So this video is for scientist C examination, which is going to be conducted by RCB DBT on 12th of April. I hope you already have filled the form and now you are in the mode of like rigorous preparation you are doing to clear your written exam, and in order to be eligible for the interview you need to crack the written exam. So this video will provide you an insight that what you have to do, how you have to go through the reference book to prepare whatever syllabus mentioned by DBT, and what are the do's and don'ts. So before starting the video, don't forget to subscribe the channel as it makes me motivated. It makes me feel motivated so that I can provide more and more content for you. So without further delay, let's start the video. So this examination, that is Scientist C examination, is going to be conducted by Department of Biotechnology through RCB, that is Regional Center for Biotechnology. So they are hiring the scientists for various disciplines, like various life sciences and biotechnology disciplines. So what are the modes of like the recruitment pattern? What is the recruitment pattern? So basically it has a CBT, a computer based test, which is the written examination. After you will qualify the written examination, you are eligible for the personal interview round, and after that you will be selected as per the merit. So now what will be the gateway for the selection? Written examination, right? Written examination अगर आप qualify करते हैं, then only you will be able to be eligible for the personal interview. Without qualifying the written examination, you will not be able to do anything. So you can see how much weightage is there for the written examination. Now it is a completely computer based test, as like CSIR and in all other examination you must have given so many times. So total questions are 200 multiple choice questions and the time allotted for it is only 120 minutes. So 200 questions and the time is only 120 minutes, that is 2 hours, and 0.5 is negative marking. So you can't attempt every question. You need to be like little careful while attempting the question. So basically the paper structure is divided into two parts. First part is general aptitude, which will comprise 100 questions, and in part B you will be having scientific knowledge like related to your field. It will comprise 100 questions. So a total of 200 questions are there in only 2 hours. So let's see what they generally ask in section A. So in section A, generally they go for general knowledge, current affairs, reasoning, verbal reasoning and type questions, analytical ability, elementary mathematics, and basic science awareness question. Now see, here comes the important part. My you can say my tip will be not to run towards the GK. As per my personal opinion, I will motivate you, I will recommend you to prepare other parts of section A as compared to only uh, running towards the GK. Because being a science student, you cannot cover the GK completely. And if you are trying to do so, you are not preparing well for this examination. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? Because frankly speaking, I will also include myself in this case. हमारा जीके उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि जीके हम हमारे सब्जेक्ट के लिए हमें जीके की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. हमने जो भी एग्जाम्स अब तक दिए हैं उसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथमेटिक्स ये सारी चीज़ें आती थी, बट जीके नहीं आता था. लेकिन इस एग्ज़ाम में
पार्ट ए में आपको देखने को मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो ज़रूरत नहीं है कि आप सब कुछ सॉल्व करें। आप करंट अफेयर्स जितना आप अपने से रिलेटेड पढ़ते हैं उतना ठीक है, पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जीके अगर आपको पता है तो भी बहुत अच्छी बात है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप डेली न्यूज़ देखते हैं, तो अगर आपको पता है तो ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास दिन बहुत कम बचा है। 12th अप्रैल को वी हैव दिस साइंटिस्ट सी एग्जामिनेशन एंड टुडे इज 14th ऑफ, मतलब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 14th को यानी सैटरडे को। सो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, रफली यू आर हैविंग ओनली अ मंथ। यानी 14th है, 12th को एग्जाम है, तो 28 डेज आपके पास हैं। सो इन 4 वीक्स में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, वॉट यू नीड टू डू। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है, हम क्विक रखेंगे वीडियो ताकि आपका 1 मिनट भी मैं वेस्ट ना कराऊं। So do focus on this reasoning, analytical ability, and you don't need to do anything for this. बेसिक साइंस आपको आता होगा, अगर आप CSIR लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेसिक साइंस तो आपका बहुत ही अच्छा होगा, ये मैं मान के चल रही हूँ। अगर आप CSIR का, इफ़ यू सॉल्व द CSIR पार्ट ए क्वेश्चन, लाइक अगर आप 5 साल का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत है फॉर दिस सेक्शन ए। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, आई कैन बेट यू। अगर आप CSIR का सिर्फ 5 साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, 20 क्वेश्चन होते हैं, तो 20 इंटू 5 100, तो वो 100 को थरली सॉल्व कर लीजिए। एंड उससे रिलेटेड, जैसे अगर कोई मान लो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला है, जैसे पैरामीटर, सरफेस एरिया निकालने का, या सर्कल से रिलेटेड ज्योमेट्रिक कुछ है, तो उसके फॉर्मूलाज को, उसके की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व सम अदर क्वेश्चन। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो साइंस आपको बन जाएगा। एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जीके, जितना आपको लगता है कि रिसेंट कुछ आपको जीके अपने साइंस से रिलेटेड है, या कुछ करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा है तो उसको थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए। एंड उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको पार्ट बी पे फोकस करना है। सो पार्ट बी में क्या क्या चीज़ें हैं? पार्ट बी में अगेन द डीबीटी, और एल्स यू कैन, अब तो मर्ज हो गया है दोनों CSIR एंड डीबीटी का सिलेबस। इट हैज़ बायोटेक्नोलॉजी, यानी ब्रॉड वे पे लिख दिया गया है, स्पेसिफाई नहीं किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सी, you have mentioned several topics in this, so you can't miss a single subtopic also, because in this syllabus it is broadly mentioned. So these are all the major, you can say, branches of biotechnology or life sciences, you can say. So what I will recommend to you is CSIR का, ICMR का, DBT का क्वेश्चन पेपर उठाओ, अभी के अभी उठाओ और सॉल्व करना शुरू कर दो। अगर आपको याद है तो हमें पता है CSIR के हर साल के पेपर में बी सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे मैंने बताया कि ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन है, 5 साल का पेपर सॉल्व करोगे तो ट्रेंड पता चलेगा, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, अगर मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड आ रहा है क्या फॉर्मूला लग रहा है। सो लाइकवाइज यू आर हैविंग 50 क्वेश्चन in each paper of CSIR. Try to solve each and every question and write all the crisp points in a notebook. हर साल का, अगर अभी जाके अगर आप लास्ट 5 years का भी देखेंगे ना, सो डे शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट का मिला के आपको 1 साल में ही 2 पेपर्स मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल गए। सो ऑथेंटिक प्रिपरेशन, इफ यू वांट टू डू इट देन गो थ्रू दी CSIR, ICMR एंड DBT। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अपना पर्सनल सजेशन आपको दे रही हूँ। मैं जब प्रिपेयर करती थी तो मैं DBT के क्वेश्चन पेपर PYQ जो रहते हैं उसको सॉल्व करती थी, बिकॉज इन ईच पेपर आई कैन गेट 250 क्वेश्चन, विच इज़ वेरी वेरी लाइक वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिससे मुझे पढ़ते ही पता चलता था कि अच्छा मुझे रेप्लिकेशन का ये एंजाइम पढ़ना है, मुझे थोड़ा सा और प्लांट बायोटेक को पढ़ने की ज़रूरत है, TI प्लाज्मिड का वर्किंग मैकेनिज्म पढ़ने की ज़रूरत है। सो कैसे पता चलेगा कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बना रहा है? PYQ। तो यहाँ पे टॉपिक देख लो, ब्रॉड वे पे लिखा है, यू कांट से कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये आएगा। सो आपको पूरा रिगरसली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। जितना आप पढ़ सकते हो उतना ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एंड इसको आपको करना होगा राइट, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से आपको शुरू करना होगा। सो मैंने बता दिया है आपको क्या क्या करना है। नाउ नेक्स्ट पार्ट,
डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें, सो पेपर विल बी नॉट सो ईजी, not so difficult, it will be a moderate kind of paper. Because if it will become very difficult, then सबको पता है कि कोई solve नहीं कर पाएगा. So every examination is a kind of moderate to difficult. Easy to moderate नहीं रहेगा पेपर, moderate से थोड़ा ऊपर ही रहेगा. So साइंटिफिक सेक्शन जो है वो एडवांस होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे एट ग्रेजुएट एंड पीएचडी लेवल, बिकॉज इट इज कंडक्टेड बाय डीबीटी with RCB. So you can expect the standard of the question paper. So accordingly, you have to prepare. Now, time management is one of the key while attempting the exam, because you only have 120 minutes, and in this 120 minutes, you have to solve 200 questions. So don't waste your crucial time in solving the mathematics का ज़बरदस्ती का जो लेंदी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश मत करो सिर्फ एक नंबर के लिए. नो नीड टू डू दैट. जैसे ही आपको सबसे पहले अपना पार्ट बी का सेक्शन दिख रहा है, लगाते जाओ, जो बन रहा है, जो नहीं बन रहा उसको छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, सब कुछ लूज कर दोगे. सीधी सी बात है, नेगेटिव मार्किंग में रिस्क लेना ही नहीं है. आई हैव सॉ सो मेनी aspirants to lose their marks only because of negative marking. So do practice it. क्या होना चाहिए आपका अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी? जैसे कि मैंने अभी बताया, ट्राई टू सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट. जो सॉलिड वन लाइनर क्वेश्चन है, ट्राई टू अटेम्प्ट देम फर्स्ट एंड देन गो फॉर द कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू सॉल्व द डिफिकल्ट वन इफ यू टाइम अलाउज, एंड देन ओनली अगर, एंड वो भी जब आपको पूरी तरह से चीज़ें आती हों. नाउ नेगेटिव मार्किंग स्ट्रैटेजी जो मैं बता रही थी, अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग. बिल्कुल भी नहीं करना है गेसिंग यहाँ पे, बिकॉज यू नीड टू क्वालिफाई द रिटर्न इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड. तो इसमें हमें कहीं से भी कोई गलती नहीं करनी है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है. हाई स्कोरिंग साइंटिफिक एरियाज क्या हो जाएंगे? सी, जितना मैंने डीबीटी का पेपर पैटर्न देखा है, ऑल्सो आई हैव प्रोवाइडेड, जब मैंने शुरू में अपना चैनल स्टार्ट किया था, आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने डीबीटी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, 30 डे क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने इतने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी एंड उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था. वो उस टाइम पे ही मैंने डीबीटी के पैटर्न को एनालाइज किया था, एंड आफ्टर एनालाइजिंग ऑल दोज क्वेश्चन पेपर पैटर्न, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, आई कैन से दैट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, immunology, microbial genetics, biotechnology, and genomics and proteomics, and bioinfo is the most scoring scientific areas for this exam. So you have to indulge yourself into all these units. एक एक molecular का चीज पढ़ जाओ. replication में क्या यूकैरियोटिक के एंजाइम है, क्या प्रोकैरियोटिक के एंजाइम है, लाइकवाइज ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ट्रांसलेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. I always recommend my students to focus on the comparative study, because replication, transcription, translation, ये तीन चीज़ ही है molecular biology में mainly, and then processing and all this secondary thing. So उसके पहले आपको comparative पढ़ना होगा, क्योंकि सेम एंजाइम है, वो सेम फंक्शन है दोनों में, बट द नेम इज डिफरेंट, द स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आर देयर, एंड there are so many things. So if you will learn comparatively, you will remember it for so long. So try to do that. Immunology, QB के जितने important topics हैं, diagrams हैं, उससे पढ़ो. Microbial genetics is one of the very important and favorite topic of DBT. And how can you forget about the techniques? The backbone of every researcher is the biotechnology, instrumentation and techniques. So you cannot forget that particular unit. मेरे ही चैनल पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे. अगर आपको चाहिए तो मैं सारा लिंक दे दूंगी आपको. आप नहीं ढूंढ पा रहे मेरे चैनल पे, बिकॉज देर आर मोर देन 1.1K वीडियोस. सो आप मुझे कमेंट कीजिए एंड डू लेट मी नो. आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ऑफ द पर्टिकुलर वीडियो जो आपको देखनी है. नाउ what are the important techniques you need to focus on? PCR, qPCR, Western blot, ELISA, flow cytometry and CRISPR-Cas system. एनालिटिकल क्वेश्चन में क्या हो सकता है? एक्सपेरिमेंटल इंटरप्रिटेशंस आएंगे. ऑल्सो इन पार्ट ए यू कैन हैव क्वेश्चन थ्रू पाई चार्ट, बार चार्ट, डेटा एनालिसिस पार्ट, पाथवे अंडरस्टैंडिंग, डायरेक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, टेक्निक के एप्लीकेशंस आ सकते हैं. ये सारे एनालिटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे.
एप्टीट्यूड प्रिपरेशन एज आई टोल्ड, बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूला आपको आना चाहिए, कैसे हम सरफेस एरिया निकालते हैं, कैसे हम सर्कमफेरेंस निकालते हैं, सर्कल के कुछ क्वेश्चंस आपको करने हैं। करंट अफेयर्स अपने फील्ड से रिलेटेड आपको देखना चाहिए, ना सिर्फ इस एग्जामिनेशन के लिए, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन अवर फील्ड। जिस फील्ड के हैं उस दुनिया में क्या चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? करंट अफेयर्स देख के पता चलेगा। सो यू कैन डू दैट। अगर आप मुझे चाहते हैं कि मैं करंट अफेयर्स कुछ प्रोवाइड करूँ अपने से रिलेटेड, सो आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड दैट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ो बस। सो व्हाट आर द रिकमेंडेड प्रैक्टिस सोर्सेज? आई विल से CSIR नेट का लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर, TVT का पेपर, ICMR के साइंटिस्ट के एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एंड गेट बायोटेक है। लेट्स से गेट लाइफ साइंसेस के भी क्वेश्चन, आई विल नॉट से कि लाइफ साइंस का क्वेश्चन, बट एटलीस्ट बायोटेक का क्वेश्चन तो सॉल्व करो, बिकॉज लाइफ साइंसेज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, ये वो सब कुछ है। सो फोकस ऑन गेट बायोटेक्नोलॉजी का पेपर, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, एंड डोंट वरी, ये मेरा इस वीडियो के बाद आई विल प्रोवाइड यू एपिसोड्स for this examination also. You only have to subscribe and do comment below, and don't forget to subscribe the channel and like the channel, because likes नहीं आते हैं तो फिर थोड़ा बुरा लगता है कि यार इतनी मेहनत करके भी एक एक लाइक नहीं दे पा रहे हैं बच्चे। सो डू दैट। सो कॉमन मिस्टेक अवॉइड करना है कि रिवीजन नहीं कर रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हो, जो क्रिस्प पॉइंट्स बनाए हैं उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो, सो इट विल नॉट वर्क। एंड एक ही क्वेश्चन पे बहुत टाइम नहीं स्पेंड करना है। टारगेट कितना करना होगा? 130 टू 150 क्वेश्चन करना होगा 200 में से, देन आप एक अच्छे सेफ जोन में होंगे। एंड 80 टू 90% एक्यूरेसी आपको रखनी पड़ेगी, यानी नेगेटिव मार्किंग अवॉइड ही करनी है। सक्सेस फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रेगुलर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट रिविजन, रात का टाइम रिविजन के लिए रखो, मॉक टेस्ट एनालिसिस करो, एंड ऐसे ही और एग्जाम स्ट्रेटजीज और क्वेश्चंस के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।